Good morning, students. Students, last time we did line clipping, right? And in that we did Cohen-Sutherland algorithm, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से लाइन को क्लिप किया जाता है. उसके कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने एक्सप्लेन लास्ट लेक्चर में दिए थे, एंड नोट्स आर आल्सो शेयर विद यू, सो प्लीज उसको एक बार पढ़ लेना. अच्छा, आज हम करने वाले हैं सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम. तो इसमें नाम से समझ आ रहा है दिस एल्गोरिथम इज टू क्लिप द पॉलीगन्स. वो था पहले लाइन वाला, ठीक है. नाउ दिस इज फॉर पॉलीगन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग दिस वी शुड बी नोइंग व्हाट इज अ पॉलीगन. So polygon is basically set of lines. Nothing, it is just a set of lines. But the point is that set of lines will be in closed way. Closed way. Let me give you an example here. Okay, polygon could be like this also, closed. It could be rectangle, it could be square, it could be like pentagon also. किसी भी shape में हो सकता है. Shape defined is. The point is that the set of lines will be in closed form, right? आपका polygon किसी भी shape में like this also. I can also say this is polygon. But yes, if I draw like this is not a polygon because it is not closed. ठीक है. तो हमको एक polygon होगा उसको हमें क्लिप करके दिखाना है by this algorithm. राइट. तो कैसे करना है ये सब? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू गो विथ 4 केसेस. जो केसेस इसमें बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, ठीक है. हम एक बार गूगल पे पढ़े हो, आपको मिल जाएगी बहुत इजीली. तो हम उसको एक बार समझ लेते हैं कि है क्या. स्लाइड शेयर से मैं आपको करवा रही हूँ इसको, ठीक है. ओके. तो इसमें आपको सामने से देख सकते हैं, यू हैव दिस विंडो, दिस इज योर क्लिपिंग विंडो, राइट. दिस इज पॉलीगन एंड इसमें आपके पास एक फर्स्ट लाइन कंसीडर करते हैं लोग, ये वाली लाइन, दिस लाइन. फर्स्ट पॉइंट इज V1, राइट, एंड नेक्स्ट लास्ट एंडिंग पॉइंट इज V2. वी आर गोइंग फ्रॉम V1 to V2, ठीक है. एंड इन दिस वी हैव दिस इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज V1 डैश, राइट. दिस इज V1 डैश. तो अगर हमारे पास ऐसा पॉलीगन है, वी आर कंसीडर फर्स्ट लाइन एंड वी आर गोइंग इन दिस केस इज outside to inside. This first case is your outside to inside. Okay, this is your first case. Okay. So अगर ऐसा केस है आपका कि जिसमें आप अंदर से आपकी लाइन बाहर से अंदर जा रही है, in that case you will be saving 2 points here. First point is V1 dash, you will save here intersection point that is V1 dash, right, and the ending point V2. ये 2 points आप सेव करेंगे उसके. If your case is outside to inside, so please you should be reading here. If the first case, if the first vertex is outside the window boundary and the second vertex is inside, right, then both the intersection point of the polygon edge with the window boundary and the second vertex are added to the output list. So intersection point here is V1 dash and the ending point here is V2. So we are saving these 2 points. These 2 points, ये point and आपका ये point. This is the first case. Okay, now moving on to the next point. Next point here is just wait. In time you just read the second point. Okay, what second point is saying, if both the input vertices are inside the window boundary, then only the second vertex is added to the output list. So matlab basically, if a line is like this V1 and V2, these both points are inside the window. अगर ऐसा केस है, in that case you will be saving the end point, that is your V2 point. So in this case you will be saving this V2 point. So in this case only V2 will be saved, right. So this case is your inside to
इनसाइड, दोनों पॉइंट्स आपके अंदर हैं विंडो के। पहला केस था जिसमें आपका एक पॉइंट बाहर था और एक पॉइंट अंदर था। ये उस केस में यू वर सेविंग इंटरसेक्शन पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, यू वर नॉट सेविंग द पॉइंट व्हिच वाज आउटसाइड द विंडो। इन दिस केस बोथ द पॉइंट्स आर इनसाइड, so you will be saving the end point, that is your V2 point. Now next, moving on to the next point. Okay, now next point is, in the if the first vertex is inside the window boundary and the second vertex is outside. अब ये केस है हमारा कौन सा, inside से outside. Please mark this arrow, check this arrow. ये arrow हमारा किस तरफ जा रहा है, अंदर से बाहर की तरफ. So please consider this thing also कि आपका केस है ये inside to outside, right? So this case is your inside to outside. अगर ऐसा केस है, what they have written, then only the edge intersection with the window boundary is added to the output vertex list. Basically, in this case, you are just going to save V1 dash, only the intersection point. This is your intersection point. आपको जहाँ पे वो लाइन विंडो को इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को आपको सेव करना है. It's only V1 dash will be saved in this case. And this case is your inside to outside. How we will come to know? By checking out this arrow. आपका एरो किस तरफ मूव कर रहा है. आपका एरो इस तरफ है तो आपका अंदर, बाहर से अंदर जा रहा है. आपका एरो अगर इस डायरेक्शन में है तो आपका, आप डायरेक्शन समझ पाएंगे यहाँ से एरो से, राइट. सो इन दिस केस ओनली इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी सेव्ड. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब आई थिंक लास्ट पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे. लास्ट पॉइंट क्या होगा आपका, जिसमें आपका V1 एंड V2 दोनों ही बाहर होने वाले. दोनों बाहर किससे, विंडो से बाहर. क्योंकि विंडो के बेस पर ही हम चेक करें कि कौन सी लाइन को सिलेक्ट करना है, किस वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, किस पॉइंट को सिलेक्ट करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट. वी हैव दीज टू पॉइंट्स V1 एंड V2. ये दोनों पॉइंट्स ही आपकी विंडो के बाहर है. इट्स वेरी ऑब्वियस कि तो दोनों पॉइंट्स ही बाहर है, आपकी लाइन ही बाहर है विंडो के, तो दैट लाइन विल बी डिस्कार्डेड. So clearly they have written here, if both the input vertices are outside the window boundary, then nothing is added to the output vertex list. कुछ भी सेव नहीं करना, nothing. No point is saved. आपको सेव करना है जब आपका या तो दोनों पॉइंट्स विंडो के अंदर हो, या दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट विंडो के अंदर हो और एक पॉइंट विंडो के बाहर हो, यानी पार्शियली. उस केस में आपको सेव करना. अगर दोनों ही पॉइंट्स बाहर हैं तो आपको सेव नहीं करना. ठीक है, तो इतना आपको बस इंट्रोडक्शन आप इस पॉइंट में दे सकते हो इस लेक्चर में. अगर कोई डाउट है आपको वो यू कैन आस्क. और पेपर में क्वेश्चन जैसे आता है आपको, तो आप कोई भी एग्जांपल, पॉलीगन की एग्जांपल लेकर के समझा सकते हैं. तो पॉलीगन आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं. इफ यू नीड कि आपको एग्जांपल दिया जाए इसके ऊपर और प्रॉपर्ली, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, मैं आपको ये अपलोड कर रही हूँ गूगल क्लासरूम. ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क दैट by commenting in the comment box. Yeah, if you want to see the example also, so please tell me that also. Okay, thank you.